Okay, so guys, I welcome you all, and today we'll start with the next topic, which is Right to Information Act. So guys, आज हम लोग क्या करेंगे? We'll understand कि RTI Act क्या है and what are the important provisions of the RTI Act. So we'll also look at some of the rules. So we'll look at important provisions of Act, और उसके बाद हम कुछ important rules भी देखेंगे, which have been framed under the RTI Act. ठीक है? सो गाइस, जो अपना आरटीआई एक्ट है, ठीक है, सो आरटीआई एक्ट कब आया? आरटीआई एक्ट केम इन द ईयर 2005 एंड so this was passed by parliament on 15th of June 2005 and then it came into force कब? उसके कुछ दिन बाद 12th of October 2005 को it came into force. So it was passed on 15th of June but it came into force on 12th of October 2005. It extends to whole of India. So earlier it was whole of India except J&K, but now it is for whole of India. So RTI Act 2005 is applicable to the entire country. ठीक है. So let us look at the objectives of RTI Act कि RTI Act क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई. So the fundamental objective is to increase transparency and accountability in the government, and the second objective was to contain the corruption. ठीक है. So guys, of course, RTI Act के अंदर just like any other act, there are many provisions कि क्या क्या एक्ट के अंदर होगा, कौन कौन सी बॉडीज होंगी, अगर कोई एक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए क्या, what are the penal provisions. So we'll go to that entire slide one by one कि जो हमारे एक्ट में दिया है. लेकिन बिफोर डूइंग दैट हम कुछ ना इसको इजीली इसको समझ लेते हैं कि आरटीआई एक्ट होता क्या है. ठीक है. सो सबसे पहली चीज कि आरटीआई एक्ट इज व्हाट? राइट टू इंफॉर्मेशन. सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या है. सो व्हाट इज द इन्फो सो व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन जो कि विच वी कैन सीक फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर द आरटीआई एक्ट. ठीक है. जैसे कि अगर मैं पूछता हूं लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ यूपीएससी. ठीक है. सो if I ask UPSC that UPSC, so you tell me that chairman of UPSC, okay, so how many foreign trips did chairman of UPSC made in last 1 year? Okay. Maybe I ask another question that okay, so how much did UPSC spend on I don't know, training of its employees. Okay. Maybe I ask another question that why UPSC is not conducting a particular exam. So guys, now think that इसमें से what is the information which we can get under the RTI Act. So guys, सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि आरटीआई एक्ट से हमें वही इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ने कितने फॉरेन ट्रिप्स किए इन लास्ट 1 year, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद यूपीएससी, देयरफॉर यूपीएससी इज बाउंड टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन. सिमिलरली, यूपीएससी ने ट्रेनिंग पे कितना खर्च किया, यूपीएससी इज बाउंड टू गिव यू दिस डेटा. लेकिन अगर आप यूपीएससी से पूछते हो that why a particular exam is not being conducted, then UPSC will not give you this. Why? Because you are not asking for a information which is already available with UPSC. So maybe UPSC is taking its own sweet time, वो लोग कुछ मीटिंग कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, maybe they haven't decided. So you can't force UPSC to decide. You can't. You can just take the status as it is today. For example, you can ask that as of now, has UPSC taken a decision whether this exam is going to be conducted or not? Yes, you can ask that, and UPSC has to reply that decision has been taken or decision has not been taken to conduct a particular exam. लेकिन आप यूपीएससी को ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों नहीं किया. ठीक है. Similarly, I give you another example that maybe you apply for a passport.
यू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट, ठीक है, और आपका पासपोर्ट नहीं आता है, सो यू कैन आस्क थ्रू आरटीआई, कैन यू आस्क थ्रू आरटीआई व्हाई माय पासपोर्ट हैज नॉट बीन मेड? यू कैन नॉट डू दैट। हालांकि उसका कुछ वर्क अराउंड है। वर्क अराउंड क्या है कि अब ये पूछने के लिए कि मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बना, अगर तुम लिखोगे व्हाई माय पासपोर्ट हैज नॉट बीन मेड, द पासपोर्ट डिपार्टमेंट विल नॉट टेल यू अंडर आरटीआई एक्ट। But if you'll ask the passport department that there is a like indirect way of getting this information. Indirect way क्या है? आप पूछ सकते हो what is name of officer, what is name of officer in charge who is responsible for looking at the file pertaining to my passport. So there would be some officer, this information, yes, उनको देना होगा। फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हो व्हाट इज द टाइम इन विच पासपोर्ट आर टू बी इशूड, तो वो टाइम आपको देगा। फिर आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट इज द एक्शन विच कैन बी टेकन अगेंस्ट ऑफिसर इफ दैट ऑफिसर इज नॉट मेकिंग पासपोर्ट इन ड्यू टाइम। सो अगेन आप इनडायरेक्टली कुछ सवाल पूछ के यू कैन ट्राई टू टेक सम इंफॉर्मेशन। और जब पासपोर्ट डिपार्टमेंट में आपका ये आरटीआई जाएगा विद दीज क्वेश्चंस, तो वो समझ जाएंगे कि भाई अब हमें लिख के देना होगा कि कौन ऑफिसर जिम्मेदार है एंड हाउ मच टाइम इट इज टेकन, क्या उसमें प्रोविजन है, क्या कुछ है। सो प्रोबेबली वो इतने से वो आपका पासपोर्ट स्पीड अप कर देंगे। बट अगर आप ट्रू एक्ट का वो समझो, you cannot ask you why my passport is not made. That RTI, under the RTI Act, any government body will not give you. So this was a brief note about कि क्या हमें मिल सकता है। सो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, तभी वो आपको मिल सकता है। यू कैनॉट आस्क व्हाई, यू कैनॉट आस्क कि व्हाई इंडिया इज टेकिंग दिस स्टैंड अगेन इन अ पर्टिकुलर पॉलिसी मैटर। नो, यू कैनॉट आस्क, यू कैन आस्क व्हाट हैज बीन द स्टैंड व्हिच हैज बीन टेकन। ओके, सो अब गाइस हम लोग क्या करते हैं कि ये तो था कि हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब एक ना, आई टेक यू थ्रू एंटायर साइकिल कि आरटीआई केस में होता क्या है। आई टेक यू थ्रू एंटायर साइकिल एंड लेट अस गो थ्रू दैट साइकिल। और उसके बाद हम एक्ट को देख लेते हैं। बट इस साइकिल से ही पूरे एक्ट के काफी फीचर कवर हो जाएंगे कि आरटीआई एक्ट होता क्या है, ठीक है। सो गाइस, फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल लेते हैं। मे बी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली, ठीक है। सो मैं आईआईटी दिल्ली का अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको मन में लगा लीजिए, सो विल ड्राफ्ट आरटीआई और फिर हम देखेंगे कैसे वो पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। सो मैं आईआईटी दिल्ली का मैं अगर स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे आईआईटी दिल्ली में आरटीआई से ये पूछना है कि एंड मे बी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मे बी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। और मुझे पूछना है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड ऑन, क्या एग्जांपल है हम लोग, हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड ऑन ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। सो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक इवेंट कंडक्ट किया, मतलब डिपार्टमेंट ने किया, ना कि स्टूडेंट्स ने स्पॉन्सर करके किया। सो द आईआईटी स्पेंड द मनी and a particular event was conducted or a seminar was conducted and you want to ask how much money was spent on the particular seminar by the civil engineering department of IIT Delhi। अब मुझे ये पूछना है, ठीक है। सो सबसे पहला मैं काम क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि मैं अपने सीपीआईओ को ढूंढता हूँ। सीपीआईओ क्या होता है गाइज? सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मुझे मुझे ये देखना है कि इस इंफॉर्मेशन के लिए मुझे किस ऑफिसर को अप्रोच करना है। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जहां भी आप अपना इंफॉर्मेशन यू आर सीकिंग, तो आप उस पर चले जाइए। गो टू वेबसाइट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या पीएसयू है, या अभी विल कम टू दैट कि कहाँ का आरटीआई एप्लीकेबल है, ठीक है। सो मैं आईआईटी दिल्ली पे जाता हूँ एंड आई गो टू वेबसाइट ऑफ आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली वेबसाइट पे जाके लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन ऑफिसर है जो कि हमें ये वाला इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो दिस इज वेबसाइट ऑफ आईआईटी दिल्ली। सो मे बी टू सेव माई टाइम मैं कंट्रोल एफ करके आरटीआई ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सो आई डू कंट्रोल एफ, आरटीआई, आरटीआई एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट। सो गाइस लेट मी ट्राई टू फाइंड, हमें कहाँ मिलेगा आरटीआई आरटीआई आरटीआई। ओके, स्कूल डिपार्टमेंट रूल कॉन्टेक्टर्स, ठीक है। maybe we'll go to home, alumni, research, faculty and staff. Do we see RTI anywhere? Maybe useful links में हम लोग देख सकते हैं। RTI SEC रूल्स इंसेंटिव वाई जॉइन IIT, ठीक है ठीक है। आई कांट सीट फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ है अपने लिए? RTI नहीं, यहाँ भी नहीं है। सो एडमिशन यहाँ भी नहीं है। एकेडमिक्स में सेंटर होगा मे बी, आई थिंक डिपार्टमेंटल लेवल पे शायद मुझे मिल जाए। सो आई गो टू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नाउ, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर मुझे यहाँ मिलेगा तो लेट मी ट्राई टू फाइंड इट हेयर। एंड RTI RTI अगर आई थिंक इट्स एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल ओनली। सो व्हाट, सो लेट्स ट्राई डू समथिंग। हम ना गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं। लेट्स सर्च विद CPIO IIT दिल्ली, और RTI भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सो गाइस आ गया, एंड we can find it here now. RTI replies, so this is RTI, and RTI queries, RTI request, RTI replies, and file RTI online, ठीक है। No, I think I had to, now I'm on another page actually. RTI IIT Delhi, IIT Delhi. So guys, give me a second. Yes. राइट टू इंफॉर्मेशन, यस, ओके, डन। सो आईआईटी दिल्ली के लिए वी हैव फाउंड द सीपीआईओ। सो हु इज द सीपीआईओ? सो सीपीआईओ की बार पीआईओ भी बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो एंड द नेम ऑफ दिस पर्सन इज व्हाट? मिस्टर शिव प्रकाश यादव, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आईआईटी दिल्ली, आरटीआई दिल्ली। और हम अपना आरटीआई भेजेंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपने पीआईओ को। सो लेट्स कम बैक। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे अपने, कई बार सीपीआई को पीआईओ भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। सो वी विल ड्राफ्ट एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? टू RTI PIO IIT दिल्ली, अंडर द RTI एक्ट आई वांट टू सीक फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है वो? that how much did civil engineering department spend on this particular festival or a particular seminar which was conducted on so and so, please let me know. उसके बाद the fees, because it will go with the fees, a fees of rupees 10 is also attached. अब उसमें आप you can't attach a 10 rupees note. आप क्या कर सकते हो? You can take a postal order. So you go to post office, और पोस्ट ऑफिस में जाके आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेके आओगे, और उसका आप एप्लीकेशन उसको भरोगे, यू विल अटैच इट, यू विल साइन इट, एंड देन यू विल send it. There are also other ways of paying online, but there is also, but mind it that you have to pay some fees, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन लिखाइए, और आपने एप्लीकेशन भेज दिया, ये किसको? आपने उसको भेज दिया पीआईओ को, आईआईटी दिल्ली के, ठीक है। अब आपने पीआईओ को भेज दिया, फीस आपने इसके साथ भेज दिया, ठीक है। नाउ व्हाट पीआईओ विल डू? पीआईओ विल रिप्लाई बैक, ठीक है। आपने पीआईओ को भेजा, सो पीआईओ अपना इंफॉर्मेशन जो भी आपने पूछा है, सो पीआईओ विल क्रिएट अ लेटर फॉर यू, ड्राफ्ट द इंफॉर्मेशन फॉर यू, एंड पीआईओ विल सेंड इट बैक टू यू, ठीक है। अब पीआईओ ये कितने दिन में आपको देगा? विद इन 30 days you will get the reply. Within 30 days PIO will get the reply. Now there can be couple of scenarios. Scenario number 1, that आपको जो इन्फॉर्मेशन वो चाहिए थी आपको मिल गया, एंड यू आर हैप्पी, वेरी गुड। सिनेरियो नंबर 2 कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला, यस, बट यू आर नॉट हैप्पी। सो बेसिकली आपको वो इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं जो चाहिए था, ऑल्दो यू गोट अ रिस्पॉन्स बट यू आर नॉट हैप्पी। सिनेरियो नंबर 3 कि आपको रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, आपको पीआईओ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आप क्या करोगे? यू विल राइट अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। आपने एक दूसरा एप्लीकेशन आप और लिखोगे। उसमें क्या लिखोगे कि मैंने एक एप्लीकेशन भेजा था एंड सो डेट को, और उसका कॉपी मेरे साथ है, जो पुराने वाला एप्लीकेशन का आप कॉपी साथ में लगा दोगे। और मुझे अपना जो भी आपका, कि मुझे नहीं मिला या मुझे मिला बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एंड देन यू विल सेंड इट वंस अगेन। अब की बार आप किसको भेजोगे? FAA, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी। अब की बार आप किसको भेजोगे? अब की बार आप भेजोगे फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को, ठीक है।
अब जो ये फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को जो आप भेजोगे, याद रखना कि ये इस रिस्पॉन्स के 30 दिन के अंदर ही आपको भेजना है। 30 दिन के अंदर आपको भेजना, आगे एक्ट में सब आएगा भी। आप उस अगर आप रिस्पॉन्स रिसीव होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को भेजना है। अब क्वेश्चन कम्स, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी कहां से आएगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आईआईटी की वेबसाइट पे चल के हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को भी। सो यहाँ एज वी कैन सी, डॉक्टर दीपिका भास्कर इज रजिस्ट्रार एंड शी इज द नो, डॉक्टर कल्याण कुमार भट्टाचार्य is the first appellate authority who is joint registrar, so it will go to this person now. So now you will send it to this person, ठीक है। अब जब आप इनको भेजोगे, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी आपने देख लिया। सो गाइस माइंड इट, फॉर एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू जो भी है, जहां भी आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पीआईओ और फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी दोनों का डिटेल हमेशा ही दिया होगा। हमेशा आपको वेबसाइट पे जाके यू हैव टू फिगर इट आउट, और आपको हमेशा वहां जाके वो मिलेगा। तो आप लिख के आप यहां भेज दोगे फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को, ठीक है। अब फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी क्या करेगा? फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी अपना रिस्पॉन्स इस पे देगा। तो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी किस तरह का क्या क्या कर सकता है? पहली बात तो बेसिकली फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी भी फंडामेंटली पीआईओ को ही बोलता है कि आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। अगर पीआईओ एग्री करता है, हाँ मुझे दे देना चाहिए था पहले, मेरे से गलती हो गया, तो मे बी दे विल गिव इट टू यू। फर्स्ट सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 2 कि वो दे तो दिया पर आप हैप्पी नहीं हो। सिनेरियो नंबर 3 कि उन्होंने आपको कुछ रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। अगेन देयर कैन बी 3 सिनेरियोज, बट गाइज माइंड इट, नंबर 1 कि जो पीआईओ है, पीआईओ ने जो अपना रिस्पॉन्स दिया है, दैट विल कम इन मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। एफएएबी को भी अपना रिस्पॉन्स, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को भी अपना रिस्पॉन्स 30 डेज में ही देना होगा, but which can also be extended by another 15 days. So in a way उसको अपना रीजन लिखना होगा इन राइटिंग, बट फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को मोटा मोटा 30 + 15 45 दिन उसके पास है, इसमें उसको अपना रिस्पॉन्स देना होगा फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को, ठीक है। अब अगेन आपके पास 3 सिनेरियोज हैं कि आप हैप्पी हो, आप या आपको मिला ही नहीं। सो अब आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैप्पी नहीं हो या फिर आपको रिस्पॉन्स मिला ही नहीं है, और यू आर नॉट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्स नहीं मिला, यू विल क्रिएट अनदर ड्राफ्ट, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम व्हाट यू विल डू, आप लिखोगे कि मैंने पहले पीआईओ को भेजा, फिर मैंने एफए को भेजा, या मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, जो भी हुआ, एंड देन यू विल सेंड इट टू सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का है, न्यू दिल्ली में है, तो उसका भी हम वेबसाइट पे जाके एड्रेस हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें आप पूरा उसको बताओगे इन एप्लीकेशन कि मुझे नहीं मिला और ये सब है। बट माइंड इट, आपको जो टाइम मिलेगा बिटवीन द रिस्पॉन्स फ्रॉम फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी टू एप्लीकेशन फाइलिंग इज 90 डेज। 90 दिन के अंदर आपको ये सीआईसी को भेजना होगा। एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं कि बियॉन्ड 90 डे भी आप भेज सकते हो इफ दे आर सफिशिएंट रीजंस, की अगर आप बीमार थे, कुछ ऐसा था, तो बियॉन्ड 90 डेज भी आप भेज सकते हो, ठीक है। आप सीआईसी को भेजोगे, और जो सीआईसी है, सीआईसी फिर अपना रिस्पॉन्स देगा। सीआईसी अपना फिर रिस्पॉन्स देगा। सो सीआईसी विल डू व्हाट? सीआईसी विल डायरेक्ट द पीआईओ कि आपने क्यों नहीं दिया या क्यों नहीं किया, व्हाटएवर सीआईसी विल डिसाइड। सीआईसी पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितना टाइम में इसको डिसाइड करना है, राइट। अदर टू जितने दिन भी इसको मन करेगा सीआईसी अपना रिस्पॉन्स देगा, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। और जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अगेन आपके पास 2 दिन ऑप्शन है कि आप हैप्पी हो या हैप्पी नहीं हो, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्स से हैप्पी हो, वेरी गुड। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। देर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील आफ्टर सीआईसी। सीआईसी ने जो बोल दिया फाइनल है। हाउएवर कुछ इनडायरेक्ट मेथड है कि आरटीआई एक्ट में तो सीआईसी के डिसीजन के अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हाई कोर्ट जा सकते हो विद अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226। रिट पिटिशन आप डाल सकते हो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट ने तो ये बोला था कि सीआईसी का डिसीजन फाइनल है, उसके बाद अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। बट यू कैन आल्सो गो टू हाई कोर्ट, बट दैट इज अ डिफरेंट साइकिल नाउ। आप अपना रिट पिटिशन डाल सकते हो अंडर आर्टिकल 226। सो दिस इज हाउ योर एंटायर स्टोरी विल गेट कंप्लीटेड कि आरटीआई एक्ट में
होता क्या है, किस किस लेवल पे, और कैसे तुम्हारा अपील, कैसे तुम्हारा हर चीज तुम्हारा डिस्पोज ऑफ होता है। ठीक है। सो गाइज, अब हमने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, नाउ इट विल बी इजी फॉर अस। एक बार सीआईसी भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बाकी दिखाया। सो आप यू कैन जस्ट गूगल इट, और आप वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यू कैन गूगल जस्ट CIC शुड गिव इट इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और यहाँ जाके आप अपना अपील फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। या फिर अगर आपको फर्स्ट अपीलेट से रिस्पॉन्स मिला ही नहीं है, तो आप सीआईसी को जाके अपना ये अपना अपील आप अपना डाल सकते हो। ठीक है। अब लेट्स नाउ गो बैक एंड लेट्स गो टू एक्ट नाउ। और अब हमें शायद एक्ट को समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगा, नाउ दैट वी नो द एंटायर स्टोरी की होता क्या है और कैसे हम एवरीडे लाइफ में हम लोग अपना आरटीआई यूज करते हैं, कहाँ क्या जाता है। एंड नाउ इट विल बिकम इजियर फॉर यू। ठीक है। अब एक एक करके अपने एक्ट के हम लोग प्रोविजन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। सो आरटीआई एक्ट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? सो विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज एस्टेब्लिश्ड। सो या तो वो एस्टेब्लिश किया हो, या कॉन्स्टिट्यूट किया हो, या फिर ओन करते हैं, या कंट्रोल्ड, या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। ये भी अपने आप में एक काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसका मतलब इवन इफ इट्स अ प्राइवेट बॉडी बट इट्स सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट फंड्स, तब भी उस पे आरटीआई एप्लीकेबल होता है। माइंड इट गाइस। अब सब्सटेंशियल फाइनेंस एक ग्रे एरिया, उसके लिए हमें जजमेंट्स वगैरह देखने पड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट या पीएसयू पर ही आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल होता है। even if there is a private body but which is substantially financed by the government, then it is okay. So that becomes appropriate government. So अगर established, finance या controlled by central government है, then central government becomes appropriate government. और अगर वो state government है, then it's state government. ठीक है। which one is the appropriate government? अब पब्लिक अथॉरिटी क्या है गाइज? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ appropriate गवर्नमेंट मेंशंस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटी वो कैसे हो सकती है? या तो वो पार्लियामेंट के या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है, जैसे कि अपना इलेक्शन कमीशन बना है, जैसे कि यूपीएससी बना है, जैसे कि कमीशंस बनते हैं। ठीक है। सो दे आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के थ्रू बनाया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एक्ट के थ्रू बनाया है, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं। या फिर a notification issued or order made by the appropriate government स्टेट के लिए स्टेट, सेंटर के लिए सेंटर, अगेन विच इज बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियल फाइनेंस्ड। ठीक है। या फिर अगर वो एनजीओ भी है, अगर वो एनजीओ भी है बट सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी होगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। Next, CIC is what? Central Information Commission, which is nothing but our highest body where we can appeal. Central Public Information Officer हमने अभी देख लिया। CPIO, then sometimes we have Central Assistant Public Information Officer. So CPIO और CPIO के अंदर कई बार हो सकता है CAPIO, Assistant Public Information Officer. Then चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो गए, जो हमने बात किया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जाके हम सेकंड अपील अपने फाइल करते हैं, इसके अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और उसके अंदर खूब सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। ठीक है। आप देख भी सकते हो। सो मे बी वी कैन गो टू CIC वेबसाइट टू सी कि आज के दिन हमारा कौन हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन है और कौन क्या है। So maybe we can look at it here. Yes, और यहाँ we can see कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है मिस्टर वाई के सिन्हा, और उनके नीचे इतने सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, सुरेश चंद्रा, समरिया, वंजना एन शर्मा, उदय महारुकर, सरोज पुन्हानी। सो ये सब इंफॉर्मेशन कमिश्नर है अंडर मिस्टर वाई के सिन्हा। वापिस आते हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड। सो ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का। सिमिलरली, जब आरटीआई एक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द स्टेट लेवल, एट द स्टेट गवर्नमेंट, सो जैसे सेंटर में CPIO था, स्टेट में हमारा स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गया, और उसका असिस्टेंट भी हो सकता है,
इस तरह जो स्टेट लेवल पे जो कमीशन होता है, सेंट्रल के लिए क्या है, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सो स्टेट लेवल पर भी कमीशन होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। उसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उसके नीचे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक चीफ कमिश्नर होगा, उसके नीचे बाकी कमिश्नर होंगे एट द स्टेट लेवल। हम किसी भी स्टेट का कमीशन भी हम लोग देख सकते हैं, मे बी वी कैन ट्राई, हम गूगल कर सकते हैं। सो किस स्टेट का देखना है, चलो पंजाब का देख लेते हैं। सो इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब अगर हम देखते हैं, सो स्टेट गवर्नमेंट में ये देखो पंजाब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आ गया। और अगर हम यहाँ इसके अंदर जाएंगे, सो अबाउट अस में शायद होगा कि कौन कौन अभी कमीशन को, कौन कौन वहां है। अगेन गाइज, ये रहा देखो। सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज सुरेश अरोड़ा, IPS से रिटायर्ड। और उसके नीचे बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ है, असित जोली, देन लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा, अनुमित सिंह सोडी एंड मनिंदर सिंह पट्टी एंड सो ऑन। ठीक है। सो गाइस सिमिलरली किसी भी स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन आप देख सकते हो। सो जहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां अपनी सेकंड अपील विल गो टू CIC। और जहां स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, देयर सेकंड अपील विल गो टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कुछ और डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सो व्हाट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो अगेन RTI एक्ट के अंदर डेफिनेशन में हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देख लेते हैं क्या। सो हु कैन बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, चेयरमैन इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चेयरमैन किस में होता है गाइज, राज्यसभा या स्टेट लेवल पे जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। एवरी स्टेट इज नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सम ऑफ देम हैव, बट एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो अगर असेंबली है तो स्पीकर और काउंसिल है तो चेयरमैन। देन सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट है तो चीफ जस्टिस एंड सो ऑन। सो दीज आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। देन नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अभी तक हमने बात किया RTI एक्ट इज फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन का मतलब हमेशा टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें हमारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मेमोज हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर। सो ये सब तो अब तक यहाँ तक थे। इसमें हमारे सैंपल्स भी हो सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इन सम वे, आप उसका सैंपल भी ले सकते हो, एज लॉन्ग एज RTI एक्ट इज अप्लीकेबल ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप मॉडल ले सकते हो, डेटा मटेरियल ले सकते हो। डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तब भी आप उसको ले सकते हो, डेटा CD में भी आप है अगर आप उसको ले सकते हो। देन रिकॉर्ड नाउ, सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, फाइल है, नॉट ओनली दिस। अगर कोई माइक्रोफिल्म है, अगर कोई इमेज है या फिर एनी अदर मटेरियल जो कंप्यूटर या डिवाइस ने प्रोड्यूस किया, सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आप कोई भी, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सो गाइस नाउ वी कम टू RTI एक्ट। सो RTI एक्ट में our right is not just to seek information, उसके अलावा हम किसी वर्क को इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। किसी ऑफिस में जाके हम वहां के डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, वर्क डॉक्यूमेंट कुछ भी। हम वहां जाके नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज देना पड़ेगा हमें, वो हम ले सकते हैं। सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल भी हम लोग ले सकते हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज बीइंग यूज्ड, हम उसका एक सैंपल भी ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन, फ्लोपी, टेप्स, वीडियो, ये सब भी हम इसमें ले सकते हैं। लेट्स मोर, व्हाट इज थर्ड पार्टी। सो गाइस थर्ड पार्टी क्या है कि अगर सिटीजन ने कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लो, सो समबडी इज गेटिंग ट्रीटेड एट एम्स, ठीक है। सो मे बी मोहन इज गेटिंग ट्रीटेड एट एम्स, ठीक है। नाउ अगर मोहन के बारे में, मोहन का ब्रदर सोहन है, सो सोहन राइट्स एप्लीकेशन टू एम्स कि मुझे मोहन का बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दो अबाउट हिज ट्रीटमेंट। सो नाउ मोहन विल बिकम अ थर्ड पार्टी। या फिर फॉर एग्जांपल आप SBI को लिखते हो कि अडानी ने जो लोन लिया है उसके हमें पेपर दे दो, अडानी बिकम्स अ थर्ड पार्टी फॉर यू। So third party is nothing but a person other than the citizen making information, and this also includes public authority. मतलब
अब किसी दूसरी अथॉरिटी, दूसरी पब्लिक अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, सो आरटीआई में, एक्ट में किस किस को राइट है ले लेने का? ओनली सिटीजन्स, मतलब अगर आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो लेकिन इंडिया में रहते हो, आप रेजिडेंट हो, तो आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देन आरटीआई एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज क्या है? सो गाइस, ये जब एक्ट बना था तब इट वाज मोर रेलेवेंट। उसमें क्या था कि जैसे ही ये एक्ट अप्लीकेबल होगा, उसके 120 दिन के अंदर सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या सारे पब्लिक अथॉरिटी, टू बी मोर करेक्ट, उन लोगों को कुछ कुछ चीज करनी होंगी। उन लोगों को अपनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली खुद से पब्लिश करना होगा ऑन देयर वेबसाइट। क्या क्या कि ऑर्गेनाइजेशन वो करती क्या है, फंक्शन, ड्यूटीज, कौन क्या करता है, पावर एंड ड्यूटी, रूल रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज की डायरेक्टरी, किसको कितना सैलरी मिलता है, बजट अलोकेशन एंड सो ऑन। सो जब आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल हुआ तब अंडर सेक्शन 4 देयर वाज सम ऑब्लिगेशंस टू पब्लिक अथॉरिटीज कि आपको ये सुओ मोटो, मतलब आइडिया वाज कि बजाय कि हर आदमी अपना आरटीआई एक्ट के थ्रू एप्लीकेशन लगाए, आप कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से खुद से ही पब्लिश कर दो सुओ मोटो ऑन योर वेबसाइट। सो दिस वाज ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। नेक्स्ट वन, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगेन ये तभी उसी कॉन्टेक्स्ट में था कि जैसे एक्ट एप्लीकेबल हुआ, सो उसमें 100 दिनों के अंदर सभी को अपना वेबसाइट पे डेजिग्नेट करके वेबसाइट पे लगाना था कि ये मेरा सीपीआईओ है, ये मेरा एसपीआईओ। कितने दिन के अंदर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सीपीआईओ, स्टेट है तो एसपीआईओ। 100 डेज के अंदर सबको अपना एक अपॉइंट करना था कि दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द आरटीआई क्वेरीज। दिस वाज सेक्शन 5। सेक्शन 6 की रिक्वेस्ट फॉर आरटीआई इंफॉर्मेशन। सो गाइस, वो एनी पर्सन who is desirous of seeking the information shall make a request in writing, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकता है, ईमेल भी कर सकते हो, इन एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। तो दिस इज द वे जिससे आप इंफॉर्मेशन सीख करोगे। ठीक है। आरटीआई एक्ट में द पर्सन हैज नॉट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन। आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, बस आप सीधा आप मांग सकते हो। अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने आरटीआई डाल दिया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, आईटी के, कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताओ। अब सिविल वाले सीपीआई को तो नहीं पता होगा, तब भी सिविल इंजीनियरिंग के सीपीआई की ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी एप्लीकेशन 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज, ट्रांसफर करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। सो गाइस, अगर आप गलत जगह पे आरटीआई भेज देते हो इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको नहीं पता कि इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन खूब सारे सीपीआई हो, कौन किसके पास जिम्मेदार है, तो आप कहीं भी भेज दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 दिन के अंदर सही जगह भेजेगा। नॉट ओनली सब जगह भेजेगा, आपको भी एक लेटर लिख के बताएगा कि मैंने आपको यहाँ से वहां भेज दिया है, और ये काम उसको एप्लीकेशन रिसीव होने के 5 दिन के अंदर ही करना होगा। डिस्पोजल ऑफ अपील। सो एज आई टोल्ड यू कि सीपीआईओ को 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा। बट अगर इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन, ठीक है, तो फिर ये 48 आवर्स में उसको जवाब देना होगा। ठीक है। और हाँ, अगर अगर कोई अप्लाई करता है और आप खूब सारा इंफॉर्मेशन ले ले लेते हो, मतलब मांगते हो, फॉर विच देयर इज अ कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने पूरा खूब सारा फोटोकॉपी कराना है, उसका कॉस्ट है। सो एंड आई टेल यू कि वो क्या लिमिट है जिसके ऊपर दे कैन सीक यू द कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को लीक करने के लिए सीपीआई आपको बोल सकता है कि आप इतना फीस जमा करा दो, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो जो फीस जमा कराने का लेटर भेजा उसने आपको, और जितनी देर में आपने फीस जमा कराई, उसके बीच के पीरियड को हम 30 दिन में नहीं गिनेंगे, क्योंकि उन दिनों द ओनस वाज ऑन अस एंड नॉट ऑन हिम। ओके, सो दे कैन आल्सो दे आल्सो रिक्वायर्ड यू टू गिव यू द अ लेटर इफ देयर इज अ नीड कि आपको कुछ फीस जमा कराना है उस इंफॉर्मेशन को सीक करने के लिए। अब कब फीस जमा कराना होता है आदमी को, वो हम विल कम टू दैट इन सम टाइम। ठीक है। अब अगर पब्लिक अथॉरिटी टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो हमेशा इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज देना होगा। ठीक है। और अगर अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, अगर सीपीआई ने बोल दिया कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, एंड देयर आर सम रीजंस कि जब वो दे कैन डिनाई द इंफॉर्मेशन, विल कम टू दैट, तो उसको अपना रीजन भी राइटिंग में बताना होगा कि भी क्यों तुम्हें हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सीपीआईओ की ही जिम्मेदारी है कि
FAA जहां अपील जाएगी उसकी जानकारी भी CPI को अपने लेटर में दें। हालांकि हम वेबसाइट पर जा खुद से भी ढूंढ सकते हैं कि FAA कौन है, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी। लेकिन अगर हम खुद से नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो CPIO की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब मना करेगा कि इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो CPIO ये भी बताएगा कि कहां से हम इसको कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 8 में क्या है कि कुछ चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो दे कैन डिनाई। सो सेक्शन 8 इज वेरी फेमस कि क्या क्या RTI एक्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। कुछ मैं आपको बता देता हूँ इनमें से मोटा मोटा चीजें क्या है। जैसे कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज रिगार्डिंग इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया। अब हम RTI एक्ट में आपको नहीं बता सकते कि बॉर्डर पे आर्मी का क्या प्लान है, राइट? या फिर कुछ इफ सम इफ समथिंग इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, आप नहीं आप पूछ सकते हैं, ठीक है? या कुछ ऐसा है विच इज अगेंस्ट द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर इज अ ब्रीच विच माइट हैपन। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको देने से कोर्ट ने मना कर दिया है। या फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट साइन किया विद फॉरेन गवर्नमेंट विद कॉन्फिडेंस, सो देयर आर लॉट ऑफ सच थिंग्स वेयर RTI एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सो इन सारे केसेस में द CPIO कैन डिनाई यू द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेड सीक्रेट है, जैसे कि मे बी मे बी अब टेस्ला इज सेटिंग अप अ प्लांट इन इंडिया। सो टेस्ला अपने अप्रूवल के लिए अपना डिजाइन वगैरह सबमिट करती है। अब टेस्ला का कॉम्पिटिटर कैन नॉट आस्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मुझे RTI में तुम टेस्ला का डिजाइन दे दो, बिकॉज दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी विच इज टेस्ला, ठीक है? सो ऐसे देयर इज अ लिस्ट। सो इस लिस्ट में जो भी चीजें हैं दे आर एग्जेम्प्ट एंड दे कैन नॉट बी सोट अंडर द RTI एक्ट, ठीक है? सो लेट्स लुक एट सेक्शन 9 नाउ। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि कुछ केसेस में अगेन इंफॉर्मेशन डिनाई हो सकती है। कब? अगर किसी आदमी के कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तब भी इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड। देन सिवियरबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम इंफॉर्मेशन पूछते हैं, मे बी आई आस्क कि भाई मुझे तुम बताओ एक दो तीन चार, आप तीन चीजें बताओ, ठीक है? अब सिपाही को लगता है कि इन तीन में से ना मैं दो और चार हैं उन वो मैं नहीं दे सकता। तो इन इन दैट केस CPIO का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजाय कि वो पूरे को मना कर दे, कि जहां जहां इट वाज ओके वहां वो इन्फॉर्मेशन दे दे। सो पार्ट इन्फॉर्मेशन वो दे दे, न कि पूरे को ही मना कर दे। दिस इज क्लोज ऑन द सिवियरिटी विच इज सेक्शन 10। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, सो इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी कॉमन सेंस कि अगर हम कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मांगते हैं विच इज अबाउट थर्ड पार्टी, तो उसमें क्या प्रोसेस है, ठीक है? कि CPIO 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस देगा कि आपके बारे में somebody is seeking इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी फिर बताएगा कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन दे दी जाए या नहीं दे दी जाए। लेकिन जो उस आदमी है जिसको हम थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को 10 दिन के अंदर रिप्लाई करना होगा। सो गाइज वंस अगेन 5 दिन के अंदर CPIO को थर्ड पार्टी को लिखना होगा कि आपके बारे में somebody is seeking information, what is your opinion? सो थर्ड पार्टी विल सबमिट द रिस्पॉन्स। लेकिन थर्ड पार्टी को मिलने के 10 दिन के अंदर अपना वो सबमिट करना होगा। एंड देन CPIO कैन मेक अ डिसीजन कि थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्स सुनने के बाद वेदर दिस इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल और शुड नॉट बी मेड अवेलेबल। अभी जो हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का बात किया तो उसका कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। सो देर इज अ CIC और देन इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जो कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो दिस एट सेंट्रल लेवल CIC, राइट? अब CIC को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जिसमें कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर विच इज नोमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? देन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप का जो लीडर है दैट दैट बिकम्स लीडर ऑफ अपोजिशन। देन CIC और IC कौन होंगे? फ्रॉम द पब्लिक लाइफ विच वाइड नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म। सो दिस इज नथिंग बट एलिजिबिलिटी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। CIC कुछ लोग नहीं हो सकते। कौन कौन नहीं हो सकते? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कोई अनदर एनी अदर ऑफिस हु इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं, या फिर वो कोई बिजनेस, दे आर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, या कोई पर्सन या कोई प्रोफेशन ऑफ परसू कर रहे हैं, ये सब लोग they cannot be appointed as चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सो गाइस सेक्शन 12 किसकी बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो सीआईसी है, फॉर ऑल दोज केसेस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उन सारे केसेस में सीआईसी में क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। इनकी टर्म्स एंड सर्विस की बात भी कर लेते हैं। सो पहले क्या था, टिल 2019 की 5 साल का पीरियड था, लेकिन फिर गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई इन द आरटीआई इन जुलाई 2019, एंड नाउ इट इज एनी टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो पहले 5 साल था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। पहले एक्ट में लिखा हुआ था कि 5 साल के लिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। दिस इज गिवन इन द एक्ट नाउ। ये अमेंडमेंट कब हुआ, जुलाई 2019 में, और काफी हल्ला भी हुआ था। पीपल काफी इस पे हल्ला हुआ कि भाई दिस इज एनक्रोचमेंट ऑन आरटीआई, एनक्रोचमेंट ऑन आरटीआई एक्ट, और वो सब ठीक है, लेकिन जो भी है यही है अपना। उसके बाद सीआईसी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक ही बार अपॉइंट अपॉइंट होगा, सो सीआईसी दोबारा नहीं हो सकता। मैक्सिमम एज लिमिट इज 65 ईयर्स। अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, आईसी, अब हालांकि री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो आईसी है वो सीआईसी जरूर बन सकता है अपना ऑफिस छोड़ने के बाद, ठीक है। बट टोटल जो पीरियड है वो 5 साल ही हो सकता है, उसका जो टोटल टाइम पीरियड है आईसी और सीआईसी को मिला के। ओथ इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को ही लिखना होगा, सीआईसी को भी और आईसी को भी। पहले जो सैलरी था सीआईसी का, दैट वाज इक्विवेलेंट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आईसी का था इक्विवेलेंट टू इलेक्शन कमिश्नर। तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड कर दिया इन 2000 जुलाई 2019। अब क्या है, सैलरी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस वाज अमेंडमेंट इन आरटीआई एक्ट व्हिच वाज डन इन जुलाई 2019। सीआईसी और आईसी को रिमूव कौन कर सकता है, सीआईसी एंड आईसी कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। कब, ऑन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड ऑन द प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट। सो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा हाँ देयर इज अ केस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तभी वो रिमूव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट विल कंडक्ट ऑन इंक्वायरी, ठीक है। प्रेसिडेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस, प्रोहिबिट फ्रॉम अटेंडिंग ऑफिस ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब तक इंक्वायरी चल रही है तो ऑफिसर कैन बी सस्पेंडेड। सीआईसी और आईसी की बात हो रही है। प्रेसिडेंट इन केसेस में खुद से भी रिमूव कर सकता है, इफ adjudged as insolvent, convicted of offense, engaged in office of profit, या फिर इज अनफिट टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो इन केसेस में भी है वो प्रेसिडेंट खुद से हटा सकता है। सो गाइस प्रेसिडेंट खुद से भी हटा सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पे हटाना है, देन प्रेसिडेंट हैज टू टेक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन इंक्वायरी करने के बाद देगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बिल्कुल पैरेलल एक स्ट्रक्चर है स्टेट गवर्नमेंट का, बिल्कुल ही पैरेलल, कि जो स्टेट लेवल के ऑफिसर हैं, बिल्कुल हालांकि सेम नहीं है, एलिजिबिलिटी में कुछ डिफरेंसेस भी है, बट बिल्कुल पैरेलल स्ट्रक्चर है। जैसे कि स्टेट पे एससीआईसी होगा, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन नॉट बी मोर देन 10 एट एवरी स्टेट। वहां प्रेसिडेंट करता तो यहाँ गवर्नर करेगा। वहां कमेटी हेड पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड वन कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ होगा चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली गाइस एलिजिबिलिटी आप एक बार देख सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल ही एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी है। अब गाइस अपील की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्शन 19 हैज प्रोविजन ऑफ अपील। अपील क्या है, अगर आप सीपीआईओ या एसपीआईओ के डिसीजन से अनहैप्पी हो तो आप फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हो, लेकिन 30 दिन के अंदर। द अपील कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 30 days. Appeal can also be accepted beyond 30 days if there are sufficient reasons, ठीक है। अगर फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी से भी आप हैप्पी नहीं हो, यू कैन गो टू कमीशन बट विद इन 90 days, ठीक है। एंड कमीशन कैन आल्सो एक्सेप्ट बियॉन्ड 90 days if there are sufficient reasons, again very parallel to first appellate authority. So guys क्या है कि फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को आपको 30 दिन के अंदर भेजना है, और सीआईसी को आपको 90 दिन के अंदर भेजना है।
लेकिन अगर इफ देयर आर सफिशिएंट रीजंस तो ये वाला लिमिट आप एक्सीड भी कर सकते हो। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपना जवाब 30 डेज में देना होगा, लेकिन 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी है। बट लेकिन अगर 30 के बाद 15 दिन के ग्रेस पीरियड में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी रिप्लाई देता है, देन द रीजंस हैव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। द डिसीजन ऑफ सीआईसी और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन विल बी बाइंडिंग, इसके बाद कोई अपील नहीं है, ठीक है। बट स्टिल सम पीपल गो टू हाई कोर्ट, और लोग हाई कोर्ट में जाते हैं विद द अंडर द आर्टिकल 2 to 6। पेनल्टीज की बात करते हैं। सो गाइस, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी? अगर सीपीआईओ या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अपना इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, देन सीआईसी या फिर स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन कैन इम्पोज अ पेनल्टी, कि इंफॉर्मेशन जितने भी दिन डिले किया 250 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज कर सकते हो, बट दिस टोटल कैन नॉट बी मोर देन 25,000। कमीशन में आल्सो रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द, सो जो भी सीपीआईओ है, फॉर एग्जांपल अगर आईआईटी दिल्ली का सीपीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सो व्हाट सीआईसी विल डू, सीआईसी आईआईटी दिल्ली के रजिस्ट्रार को या फिर डायरेक्टर को चिट्ठी लिखेगा कि आप इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लो अंडर द सर्विस रूल्स। देन आरटीआई एक्ट हैज 2 शेड्यूल्स, ठीक है, 2 शेड्यूल है आरटीआई एक्ट में, फर्स्ट और सेकंड। सो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल है ओथ, जो प्रेसिडेंट देता है सीआईसी को, या गवर्नर देता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ठीक है। और सेकंड शेड्यूल में क्या है गाइज? सेकंड शेड्यूल में वो सारी बॉडीज हैं जहां की आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसी कौन कौन सी? जैसे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरेट ऑफ enforcement, directorate of revenue intelligence, then we have police, income tax। तो you can go through this list। इन सारी organizations पे आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज गिवन इन द सेकंड शेड्यूल। फिर आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ रूल बने हुए हैं। सो दीज रूल्स हैव लाइक डेफिनेशन ऑफ अ कमीशन। सो कमीशन का डेफिनेशन एक्ट में नहीं है, रूल के अंदर है। देन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी रूल के अंदर है। देन रजिस्ट्रार इज विद द कमीशन। सो जो सीआईसी है या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है जो, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों में एक रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, टू कैरी आउट द वर्क। एप्लीकेशन फीस भी हमें एक्ट में नहीं, रूल में बताया कि 10 रुपए का एप्लीकेशन फीस होगा। अब गाइज अपर लिमिट क्या थी जो हमने बताया कि 10 रुपए की फीस में इंफॉर्मेशन देना होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन शुड बी अप टू 500 वर्ड्स। अगर इंफॉर्मेशन 500 वर्ड से ज्यादा है, उस केस में सीपीआईओ या आईओ आपको बोल सकता है कि हमें आप इसका फीस दो, तब हम इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर 500 वर्ड्स तक की इंफॉर्मेशन है, देन द फीस ऑफ ₹10 इज सफिशिएंट। सो गाइस माइंड इट, जो ये वाला फीस है, दैट इज फॉर सेंट्रल नाउ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, क्योंकि रूल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। स्टेट गवर्नमेंट का क्योंकि फीस एक्ट में नहीं दिया, फीस रूल में दिया है, तो सेंट्रल के अपने रूल है, स्टेट के अपने रूल है। तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट में अगर आप आरटीआई लगाओगे, then fees might be having a different amount than ₹10। For example, in the state of Haryana, RTI का fees is not ₹10, it is ₹50। तो जितने भी rules हैं, these rules are for the, ये जो रूल हमने यहाँ लिखे हैं, these are for the सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने रूल हो सकते हैं, दे विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। सो अब इसमें फीस का प्रोविजन भी है कि आप A3 के पेपर के लिए ₹2 ले सकते हो, या कैसे कैसे आप फीस को कलेक्ट कर सकते हो। नाउ अगेन गाइज, अगर रूल ये भी बोलते हैं कि अगर अगर इफ द एप्लीकेंट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उससे फीस नहीं लेना है, लेकिन उसको अपना एप्लीकेशन के साथ ही ये बताना होगा कि मैं आई एम लाइंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। हाउ वी कैन पे द फीस? फीस कैन बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर, बैंकर चेक, या फिर आप वहां जाके कैश में भी आप काउंटर पे जमा करा सकते हो। दिस ऑफ फीस कैन बी पेड अंडर द आरटीआई एक्ट। जो अपील का प्रोसेस है, अगेन आई हैव टोल्ड यू, बट दिस इज आल्सो, बट दिस हैज बीन गिवन इन द एंटायर प्रोसेस हैज बीन गिवन इन द रूल्स। अब जो प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अपील है, दैट आल्सो हैज बीन गिवन अंडर द रूल्स।
सो जनरली गाइज रूल आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर आरटीआई एक्ट समझने के लिए, फिर भी मैंने आपको बता दिए, बट माइंड इट, ये वाले रूल बताए दे आर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल हो सकते हैं. Let's look at few questions now. RTI Act कब आया? So RTI Act came on the 12th of October 2005. It came into force. What is the time limit to get the information under RTI Act? कितना है? 30 days is the time limit. किसके? From the CPIO. अगर FAA के पास एप्लीकेशन है तब कितना टाइम लिमिट है गाइज? इन दैट केस टाइम लिमिट इज 30 + 15 days. अगर कमीशन के पास है तो नो टाइम लिमिट, कमीशन कितना भी टाइम ले सकता है अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए. जो द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस, किसको फीस नहीं देना है? बिलो पॉवर्टी लाइन को फीस नहीं देना है. द पीरियड फॉर डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन एक्सपेंड बाय हाउ मेनी डेज फ्रॉम 30 15 days. सो 30 से 15 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो फर्स्ट अपील को डिस्पोज करने में. बाय whom? बाय द फर्स्ट appellate authority. As per provision of RTI Act, the Chief Information Commission shall be appointed for how much time? 5 years, and upper age limit is 65 years. As per RTI Act, the right of information include right to obtain what? हम floppy disk tape कुछ भी ले सकते हैं. All of them are true. Which of the following does not come under the definition of RTI Act? Information के अंदर क्या क्या नहीं आता है? Log book yes, data electronic form yes, file noting नहीं, circular yes. File noting which are nothing but green colored sheet जो government of India use करती है, maybe state government also, they are not eligible to be given under the RTI Act. File noting are not included. Who are not eligible to get information from the RTI Act? So guys, RTI Act में किस किस को information RTI Act में किस किस को information guys मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिल सकता है. कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, कंपनीज, लीगल एंटिटीज, they cannot file the RTI Act. Therefore, correct answer is सिर्फ और सिर्फ citizens can apply for the RTI Act. So that is all for today. If there is any doubt, please let me know. Okay. So guys, thank you so much. Thank you.